Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Now, in this chapter, you will learn about conservation of forest. Now, chapter number 1, conservation of forest means what? Conservation means to protect. We have to protect our forest. So now in first semester you have already learned that what is environment. Have you remember? Environment means things surrounding us, and in that things we find many living things also and many non-living things also. That also you have learned. In living things we'll see trees, animals, birds, insects, human beings, etc. etc. And in non-living things like river, mountain, then sun, moon, sunlight, etc. etc. So both are very useful to us. Without that, our life is not possible. That also you have studied. Now forest will come in living things, and that is our environment also. So we should protect, we should conserve our forest. Okay, forest gives many things that you will learn in this chapter, uses of forest and many more things. So let us start our reading. A forest is a large area of land covered with trees and woody vegetation. Many species of plant, trees, animals, and animal products are supported by the forest. Means we see many things in forest, like many type of plants, animals, and the product means things we get from the animals. Okay. The forests are of great importance as they form a very crucial part of the ecosystem. और फॉरेस्ट है वो हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द फॉरेस्ट, विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट वी कैन एबल टू फॉर्म इकोसिस्टम. ओके, 30% of the world's land is covered with forest. Humans are also very much dependent upon forest, and some people also live in the forest. So human beings are dependent on forest as well as many people live in forest also. बहुत सारे लोग forest में रहते हैं, और हम जो नहीं भी रहते हैं वो भी forest से depend तो है ही. उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है. People who live in the forest are called tribal people or Adivasis. And those who live in the forest, they are known as tribal people or Adivasi. उनको आदिवासी कहते हैं या tribal people कहते हैं. Their lifestyle, food habits, or the means of their livelihood very much depends upon the forest and forest product. तो जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, उनकी लाइफ, उनका फूड, उनकी जो हैबिट्स है, उनका लाइवलीहुड यानी कि जीवन जो जीते हैं, वो बहुत हद तक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है या फॉरेस्ट की चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है.
In short, we can say that the forests are very, very useful for us. तो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट यानी क्या? फॉरेस्ट यानी कि लार्ज एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज और वेजिटेशन होते हैं, बहुत बड़ी एरिया में जहाँ पे ट्री पाए जाते हैं, बराबर। और इसी ट्री के बहुत सारी जातियाँ भी होती है, और तो और एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये ट्रीज़, ये फॉरेस्ट उनको सपोर्ट करते हैं जीने के लिए। ओके, इस तरह से एनिमल्स और साथ साथ में ह्यूमन बींग्स के लिए भी फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी फॉरेस्ट से इकोसिस्टम भी बनता है। 30% जो है वर्ल्ड की लैंड, उस पे फॉरेस्ट कवर्ड है, यानी कि 30% लैंड पर जो है फॉरेस्ट पाया जाता है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको हम आदिवासी कहते हैं। इस तरह से फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफस्टाइल पे, फूड और तो और हमारे जो जीवन जीते हैं उस पे काफ़ी असर होता है फॉरेस्ट का। वो हम फॉरेस्ट पे काफ़ी हद तक डिपेंड है, उनके प्रोडक्ट पर। और फॉरेस्ट से हमें और कई चीज़ें मिलती है, जैसे कि शुद्ध हवा या फिर बारिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आप लोग इसको पढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर बेनिफिशियल इन ए नंबर ऑफ वेज। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर, नंबर 1, they are home to millions of animals. Means here millions, many lakhs and crores of animals as well as birds lives in the forest. यहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों एनिमल्स रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, they are of great economic importance. Now, what do you mean by economic importance? Means from that things we get the money and we can live our livelihood. Money making, जिससे हमें पैसे मिलते हो, उसको कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो फॉरेस्ट का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, यानी कि उससे हमें मनी, पैसे भी मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, they help in controlling climate and atmospheric purification. इससे क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, यानी कि बैलेंस रहता है, बहुत अधिक ज़्यादा भी नहीं हो जाता है और बहुत कम भी नहीं होता है। इस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है फॉरेस्ट, और एटमॉस्फेयर को प्योर भी करता है, शुद्ध, क्योंकि जो है फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और एयर है वो प्योर होती है। नेक्स्ट, दे गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। जैसा कि हमने देखा कि एटमॉस्फेयर को प्योर करता है, तो ऑक्सीजन की वजह से ही हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, और जिससे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव भी करते हैं। नेक्स्ट, दे इंड्यूस रेनफॉल, मतलब कि यहाँ पे ब्रिंग फ्रॉम फॉरेस्ट वी गेट द रेन। ड्यू टू द फॉरेस्ट द क्लाउड्स, that water vapors, they condense, means they become cool and turn into water, and afterwards the rain comes. Now next, they are house to human beings too. In forest human beings also live. तो human beings भी, मनुष्य भी फॉरेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट, दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ पे इकोसिस्टम तो आपने देखा ही है। तो इकोसिस्टम मीन्स हियर द लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहता है फॉरेस्ट के वजह से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं, पेड़ के ऊपर
कोई एक बर्ड है या कोई एक एनिमल है और दूसरे एनिमल के ऊपर, इस तरह से फॉरेस्ट की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है। दे कंट्रोल सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोशन यानी कि मिट्टी बह जाना। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो उनके रूट्स से सॉइल यानी कि मिट्टी को वो पकड़ के रखते हैं, क्योंकि पेड़ की वजह से मिट्टी थोड़ी वेट भी रहती है, गीली भी रहती है, और जल्दी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे इरोशन होना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाना वो कम होता है पेड़ों की वजह से। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड अस विथ न्यूमरस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे चीज़ें भी मिलती है जो हमें कई तरह से उपयोगी है, प्लस दवाइयाँ भी मिलती है, मेडिसिन्स भी मिलती है, और कई ऐसे पेड़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे आपने फॉरेस्ट के यूजेस देखे। डिफॉरेस्टेशन as well as forest cutting. Deforestation is the cutting of trees in large number. This activity converts the land into a non-forest use. It occurs for various reasons. The natural reasons that cause deforestation are forest fire, flood, ड्रॉग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट का कटिंग होना, फॉरेस्ट को कम हो जाना, बराबर, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो एक तो होता है नेचुरली डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल कम हो जाना, और एक होता है मैन मेड यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं जंगल को काट कर अपने यूज़ के लिए जंगल को काटते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप देखेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल, बराबर। तो ये नेचुरल डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है? कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, कभी फ्लड आता है, तो फ्लड पे सारे के सारे जंगल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ्लड की वजह से। या फिर ड्रॉग यानी कि एकदम सूखा होना, पानी, बारिश बरसना ही नहीं, पानी होना ही नहीं जंगल में, तो एकदम पेड़ जो है जंगल सूख जाते हैं। तो इस तरह से ख़त्म हो जाता है जंगल का जंगल। तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो आपने ये देखे नेचुरली डिफॉरेस्टेशन। अब मैन मेड कैसे करते हैं? द मैन मेड रीज़न इंक्लूड कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर, कमर्शियल पर्पस, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, माइनिंग एक्सेट्रा। अब ह्यूमन बीइंग है फॉरेस्ट को क्यों काटते हैं? खेती करने के लिए। अगर जंगल को काट देंगे तो वो प्लेन ज़मीन हो जाएगी, वहाँ पे वो खेती का उपयोग करते हैं, खेती के लिए उपयोग करते हैं उस ज़मीन को, इसलिए भी जंगल को काटा जाता है। ट्रेड के लिए, कमर्शियल यानी ट्रेडिंग, व्यापार के लिए जो है पेड़ों को काट कर उसकी लकड़ियों को, उसकी चीज़ों को बेच कर वे कमाते हैं, तो उसके लिए भी जंगल को काटा जाता है। फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों को रहने के लिए, बस्तियां बनाने के लिए जंगल के जंगल काट देते हैं और वहाँ पे फिर ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वे अपनी बस्ती बनाते हैं। अर्बनाइजेशन, अर्बन यानी शहर, शहर बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। तो इस तरह से शहरों को बसाने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। एंड माइनिंग यानी कि खान, जो ज़मीन के नीचे से हम लोग बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, उसको कहते हैं माइनिंग। तो माइनिंग वर्क करने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। तो इस तरह से
डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट कटिंग है वो नेचुरली भी होती है, यानी कि नेचुरली भी जो जंगल है वो कम हो जाते हैं, या तो फिर ह्यूमन बीइंग भी अपने पर्पस के लिए, अपने हेतु के लिए करते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, पेस्ट एंड डिजीज आर ऑल्सो बिकमिंग ए ग्रेट कॉज ऑफ फॉरेस्ट कवर स्पॉइलेज। तो इस तरह से कभी कभी क्लाइमेट की वजह से या फिर जो उसमें कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट मतलब कि कीड़े लग जाना, और जंगलों में या पेड़ पौधों में, पेड़ों पर जो है डिजीज़ लग जाना, इससे भी जंगल जो है स्पॉइल यानी कि ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जंगल को कम होना या डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है वो देखा।